سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عوام بڑے بل بھرنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ تبدیلی سرکار کا عوام کو بڑا جھٹکا، بجلی 4.74 فی یونٹ مہنگی کر دی ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ لوگ مریں چاہے کریں فاقہ، حکومت نے عوام کی جیبوں پر ڈال دیا ڈاکہ۔ عوام کی جیب سے مزید 60 ارب روپے نکالنے کی تیاریاں۔ نیپرا نے بجلی مزید 4.74 فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ بجلی اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ حکومت نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ اکٹھے 4.74 بجلی مہنگی کر دی ہے۔ صارفین سے یہ اضافی قیمت دسمبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اب اس اضافے کے بعد بل کیسے بھریں گے؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے بری خبریں ہی سننے کو مل رہی ہیں، اچھی خبر سننے کے لیے کان ترس گئے ہیں۔ سی پی پی اے نے جتنی درخواست کی نیپرا نے اتنا ہی اضافہ کر دیا۔ جنوبی پنجاب کا شہر ملتان بن گیا مثالستان۔ غلہ گودام چوک سے چوک شاہ عباس تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مٹی اور دھول اڑنے سے تاجر اور علاقہ مکین پریشان۔ ملتان شہر کے غلہ گودام چوک سے لے کر چوک شاہ عباس تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انتظامیہ نے پائپ لائن ڈالنے کے بعد کام ادھورا چھوڑ دیا۔ تاجروں اور علاقہ مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں، جبکہ ٹریفک جام اور حادثات بھی معمول بن گئے۔ اتنے پریشان ہیں نہیں روڈ تو اندر کول تو بہتر آئی ہے، نہ پٹے نہ وہ بہتر آئی پٹ کدھر نہیں ہونی، کوئی نہ بنے نہ کوئی بندہ ہی کیا نہیں پڑنا والا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ مٹی اور دھول کے باعث وہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سارے دن ادھر ہم کام کرتے ہیں اور اسی جو مٹی ہے سامنے چوک پہ سے مٹی اٹھتی آتی ہے، یہ ساری جو ٹرالی لے جاتے ہیں ان سے جو برائے مہربانی یہ کہا جائے یہ رات کے ٹائم مٹی اٹھائیں، جن کے ٹائم جو مٹی اٹھاتے ہیں وہ مٹی کے ساتھ ٹرالی آتی ہے، وہ ہمارے منہ کے اندر ناک کے اندر اور یہ ہمارے گلے کے اندر بیماری ہو گئی ہیں، ہم کمانے سے بھی پریشان اور یہ بیماری سے بھی پریشان۔ تاجروں نے انتظامیہ سے سڑک کی از سر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ 5 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار چوک کمہارن والا کی مین روڈ کی سنی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے روڈ کی مرمت کا کام کیے جانے پر تاجروں کا کاروبار بحال ہو چکا ہے، جس پر تاجر برادری خوشی سے نہال ہو گئے۔ یہ مناظر ہیں شہر ملتان کی مین شرح میں شمار ہونے والے چوک کمہارا کے۔ 5 ماہ بعد انتظامیہ کی جانب سے مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ روڈ کی مرمت کا کام شروع ہونے سے روڈ پر کاروباری زندگی بھی بحال ہو گئی، جس پر تاجروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت پریشانی تھی، ٹریفک کے مسائل تھے اور اتنے مسائل تھے کہ 2-3 گھنٹے ٹریفک بلاک رہتا تھا، اور انہوں نے ہم سے وعدہ اور بھی کیے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ کے وعدے کیے ہیں، انہوں نے یہ ریڈیو والوں کے وعدے کیے ہیں کہ ادھر سستا بازار لگا کر دیں گے۔ تاجروں کا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا تھا اور ان کی مہربانی سے اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمارا مین بازار کا جو روڈ تھا وہ کارپیٹ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ روڈ کے درینہ مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ روڈ پر موجود تجاوزات بھی بہت جلد ختم کیا جائے تاکہ روڈ کی روانی متاثر نہ ہو۔ ہمارا کے تاجران سے بلکہ جتنے بھی باقی تاجر حضرات ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جہاں پہ انتظامیہ کی ان کو اسسٹنس چاہیے، ہم آل آؤٹ ہیں، آؤٹ رائٹ ہیں، بٹ جہاں پہ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے، جہاں پہ عوام کی فلاح کے لیے روڈز کے اوپر سے رکاوٹیں ہٹانے کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے سے تعاون کریں تاکہ ہم اپنے شہر کو مزید خوبصورت کریں۔ انتظامیہ کی جانب سے روڈ کے درینہ مسئلے کو حل کیے جانے پر تاجروں نے انتظامیہ کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی جنرل بس اسٹینڈ سہولیات سے محروم ہے، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، جبکہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کا بھی مناسب انتظام نہیں۔ ملتان جنرل بس اسٹینڈ کا کوئی پرسان حال نہیں، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، ڈرائیور کچرے کے درمیان بسیں کھڑی کرنے پر مجبور ہیں، گندگی کے باعث ماحول تعفن زدہ ہو گیا، مسافروں کو دھول مٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گندگی زیادہ ہے ملتان میں، لاری اڈے میں کوئی پتہ نہیں پڑ رہی ہے اس کی، یہ صفائی بھی ہو اور ہر جگہ گندگی بہت ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ جنرل بس اسٹینڈ کی ابتر صورتحال پر شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں گندگی کے باعث سانس لینا بھی محال ہے، بس اسٹینڈ پر سہولیات ہیں اور نہ ہی صاف ستھرائی کا مناسب انتظام۔ کچرا اٹھانے کوئی بھی نہیں آتا، شہر کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ جنرل بس اسٹینڈ کی حالت ہے۔ شہریوں نے جنرل بس اسٹینڈ پر صفائی ستھرائی کا مناسب بندوبست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ انتظامیہ کی نااہلی، جتوئی کا واحد سپورٹس اسٹیڈیم فعال نہ ہو سکا، گراؤنڈ باؤنڈری کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا، شہری کھیلوں سے محروم ہے، جبکہ اسٹیڈیم میں آوارہ کتوں نے ڈیرے لگا دیے۔ جتوئی میں نون لیگ کے دور حکومت میں سپورٹس اسٹیڈیم منصوبے کا افتتاح کیا گیا تھا، 4 دیواری، گراسی پلاٹ اور کمپلیکس کی تعمیر مکمل کی گئی، شائقین کے بیٹھنے کے لیے نشستیں بھی بنا دی گئیں، لیکن انتظامیہ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی غفلت کے باعث تاحال اسٹیڈیم فعال نہ ہو سکا۔ تالا لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کتے گھوم رہے ہوتے ہیں،
खेलने के लिए यहाँ पर कोई निज़ाम भी नहीं है, इसको फाल किया जाए। बहरहाल हमने एसी साहब से पिछले दिनों रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने परमिशन हमें दी थी, हमने एक तो बार मरतबा खेलने दिया था, फिर हमें ठेकेदार साहब ने अंदर नहीं आना दिया। चौकीदार न होने के बायस आवारा कुत्तों ने स्टेडियम में डेरे लगा लिए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 4 साल का अरसा जो है तकरीबन गुजर चुका है, अभी तक ये नामुकम्मल है और इसको नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो अभी तक फाल नहीं किया गया, तो हमारी वज़ीर पंजाब से और आला हुकाम से ये अपील है कि इस स्टेडियम को जो फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि नौजवान यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिविटी जारी रख सके। खिलाड़ियों का कहना है कि वो खेलने आते हैं, ताले देखकर मायूस लौट जाते हैं। जहां ग्राउंड आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। जतोई के खिलाड़ियों ने हुकूमत से स्पोर्ट्स स्टेडियम को जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। पंजाब सरकार का ऐसा इक़दाम बिजली से महरूम इलाके भी अब रोशन होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चोलिस्तान, थल और कोहे सुलेमान में सोलर एनर्जी मंसूबे की मंजूरी। चोलिस्तान, थल और कोहे सुलेमान की बिजली से महरूम पसमानदा इलाकों को सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अगले माह पहले ऑफ ग्रिड सोल्यूशन प्रोजेक्ट में इफ्तिताह करेंगे और पंजाब के सैकड़ों गाँव को मरहलावार बिजली फ्राहम की जाएगी। पसमानदा इलाकों की मसाजिद को भी मरहलावार सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि ऑफ ग्रिड सोल्यूशन के जरिए न सिर्फ अवाम को फायदा होगा बल्कि हुकूमत को अरबों रुपए की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली के हुसूल की तरफ गामजन है। साबिक हुकूमत ने एनर्जी के महंगे मंसूबे लगाए। आला सतह के इजलास में सेक्रेटरी तवानाई ने ऑफ ग्रिड सोल्यूशन पर पेशरफ्त से आगाह किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आबाई जिले मियाँवाली में 11 दिसंबर को जलसा याम से खिताब करेंगे। इंतजामात और तैयारियां जारी हैं, जबकि खिलाड़ियों का जोश और जज्बा भी अरूज पर है। पाकिस्तान, थल और कोहे सुलेमान की बिजली से महरूम पसमानदा इलाकों को सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अगले माह पहले ऑफ ग्रिड सोल्यूशन प्रोजेक्ट में इफ्तिताह करेंगे और पंजाब के सैकड़ों गाँव को मरहलावार बिजली फ्राहम की जाएगी। पसमानदा इलाकों की मसाजिद को भी मरहलावार सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि ऑफ ग्रिड सोल्यूशन के जरिए न सिर्फ अवाम को फायदा होगा बल्कि हुकूमत को अरबों रुपए की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली के हुसूल की तरफ गामजन है। साबिक हुकूमत ने एनर्जी के महंगे मंसूबे लगाए। आला सतह के इजलास में सेक्रेटरी तवानाई ने ऑफ ग्रिड सोल्यूशन पर पेशरफ्त से आगाह किया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात रोल ऑफ बिजनेस के बाद से अब तक फंक्शनल ना हो सके। जनूबी पंजाब की तहसीलों में एसी साहिबान की तैनातियों के हुक्मनामे अब भी लाहौर सेक्रेटेरिएट से ही जारी हो रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर कहते हैं मामलात जल्द बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 3 माह से अमलन गैर फाल। रूल ऑफ बिजनेस के बाद भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल इख्तियारात न मिल सके। जनूबी पंजाब की तहसीलों में एसी साहिबान की तैनातियों का इख्तियार अब भी लाहौर के पास ही है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज सिर्फ दौरों और चेकिंग तक महदूद कर दिए गए। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का मानना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन एक रूल्स ऑफ बिजनेस का एक प्रोसेस है, तो उस कंसल्टेशन में थोड़ी देर होगी, लेकिन हर मामले में जैसे ये है कि जरूर इसकी सवेर भी होगी ताकि तमाम कानूनी कोई पेचीदगियां इसमें हैं उन तमाम को हल करके, क्योंकि इसमें लॉ डिपार्टमेंट है, इसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे, तो उनके साथ कंसल्टेशन में थोड़ा टाइम लग गया। कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर कहते हैं कि रूल ऑफ बिजनेस के बाद टेक्निकलिटी को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब में इकदामी और इंतजामी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट कंसल्टेशन पूरी हो चुकी है और इस सिलसिले में इसी वीक में एक मीटिंग भी मुतवक्के है, तो इंशाल्लाह उस मीटिंग में ये तमाम मामलात हल भी हो जाएंगे और उसके बाद जिस तरह कैबिनेट ने एक अप्रूवल दी है, जिस तरह जनूबी पंजाब का एक ख्वाब था, तो इंशाल्लाह वो शर्मिंदा ताबीर होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने के बाद से अब तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी इख्तियारात नहीं दिए गए, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के अवाम को अभी तक अपने कामों के लिए लाहौर जाना पड़ता है। जनूबी पंजाब के फैसले रूल ऑफ बिजनेस के बाद भी लाहौर सेक्रेटेरिएट से ही जारी होते हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। रहीम या खान में मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से आगाही सेमिनार। ज़िला ऑफिसर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वहीद इकबाल ने लेक्चर दिया।
कहते हैं मतवाजन फैमिली से ही खानदान खुशहाल होगा। टाउन हॉल हिमियर हान में महकमे पॉपुलेशन के ज़ेरे एहतमाम मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से आगाही सेमिनार हुआ। ज़िला ऑफिसर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वहीद इकबाल का कहना था कि बढ़ती हुई आबादी से वसाइल में कमी आ रही है। बच्चे की पैदाइश में 3 साल का वक्फा जरूरी है। यह है कि आप अपने जो बच्चे इस दुनिया में लेके आ रहे हैं उन्हें आप क्या सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, उनकी तालीम किस तरह हो रही है, उनके रहन सहन के लिए उनकी सेहत कैसी है। तो इस हवाले से बातों के आज के सेमिनार में हमने मुख्तलिफ तबकात के लोगों को बुलाया जिनमें उलमा किराम भी शामिल है कि बच्चों में मुनासिब वक्फा रखें ताकि हम सुख की जिंदगी गुजार सकें। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर रियासत अली, मरकजी सदर शिया सुप्रीम काउंसिल बाबर जमान, मेंबर अमन कमेटी हाजा मोहम्मद अदरीस, कोऑर्डिनेटर फलाही रहनुमा हैरहा आतिफ बलोच और दीगर मजहबी स्कॉलर्स ने भी शहरियों को आगाही दी। किसी भी कौम ने जो तरक्की करती है वो प्री प्लान करती है हर काम के बारे में, तो हमें आबादी के बारे में भी इसको कम करना होगा, प्री प्लान करना होगा, पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। बढ़ती हुई आबादी का हमारे माशरे के ऊपर क्या असरात हैं, इसके क्या अच्छे चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें, वो लोगों के साथ उसका आगाही दी जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेहनत की, आपने देखा कि एक भरपूर प्रोग्राम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये जहाँ से जो शुरा हैं ये अच्छा मैसेज लेकर लोगों में जाएंगे और इसके माशरे पे अच्छे असरात मुरतब होंगे। सेमिनार में माँ और बच्चे की सेहत और मतवाजन फैमिली के मुस्बत असरात के हवाले से भी आगाही दी गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यारहान। खुशाब में ऑल पार्टीज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तमाम मसालिक और सियासी पार्टियों के अहदेदारों ने शिरकत की है। जौहराबाद के निजी होटल में मुनक़िदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हजूर की नामूस का पहरा देना किसी एक मसलक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुसलमान का फ़र्ज है। हमारा ज़िला पुरअमन ज़िला है, यहाँ पर हर मसलक का बंदा एक दूसरे की कदर करता है। इंशाअल्लाह किसी भी शरपसंद को यहाँ सर नहीं उठाने देंगे। खुशाब में ऑल पार्टीज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें ज़िला भर के तमाम मसालिक के उलमा कराम ने शिरकत की। हमारे रिपोर्टर जुल्कनैन हैदर रहमान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी जुल्कनैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जौहराबाद में, जहाँ पर ख़त्म नबूवत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और इसका इनेकाद करने का क्या मकसद है, हमारे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी और मुख्तलिफ मसालिक के जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि सवाल सुनकर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मकसद है आज के इस प्रोग्राम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में ऑल पार्टीज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी है, तो इसका मकसद ये है कि तमाम पार्टीज़ को और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को एक प्लेटफार्म पे खड़ा करना है और ख़त्म नबूवत का हमने पारा देना है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हम सारे सियासी और सारे मजहबी लोग हम सब इकट्ठे हैं जी। सर क्या कहेंगे आप? जी, दुनिया के मौजूदा हालात के मुताबिक जितना ख़तरा इस्लाम को बैरूनी दुनिया से उतना ही अंदर में इतने इख्तलाफात हैं, लेकिन आज की ऑल पार्टीज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की गुफ्तगू सुनकर दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ कि उन्होंने ख़त्म नबूवत का जो ऐन अहमियत मुआशरे तक पहुँचानी है वो उन्होंने पहुँचाई है। जी बिल्कुल, आना खातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी, इस हदीस पर अमल पैरा होते हुए आज का खुशाब में जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म नबूवत का इनेकाद किया गया है ताकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का यहाँ पर पहरा दिया जा सके और किसी भी हवाले से उनका कहीं पे। ठीक है तुल्कनैन, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बार सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैहि के 708वें सालाना उर्स का आगाज़ हो चुका है। अजीम रूहानी पेशवा ने इस्लामी तालीमात की जो शमअ रोशन की, आज भी भटके हुए दिल इससे फैज़याब होते हैं। रसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। बरे सगीर पाक को हिंद में जिन मुबारक हस्तियों ने शमे इस्लाम की नूर बखेरती किरणों से तारीख दिलों को जगमगाया, उनमें एक सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम पेशवा हजरत रुकन आलम अबुल-फत्ह शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी भी है। आपकी विलादत 9 रमज़ान मुबारक 649 हिजरी को मदीनतुल औलिया मुल्तान में हुई। हजरत शाहरुखन आलम के दादा हजरत शेख बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत, वालिद हजरत सदरुद्दीन आरिफ के ज़हदो तकवा और वालिदा मार्दा बीबी रास्ते की इबादत और पाकीज़गी मिसाल थी। हजरत शाहरुखन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने 4 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया और 16 साल की उम्र में तमाम मुरवज्जा उलूम से फरागत हासिल फरमाई। फिक्का व बयान, अदब व शेर और रियाजी व मंतक में कमाल पैदा कर लिया।
हजरत शाहरुख आलम ने 52 साल तक लोगों को राह हक दिखाई। जमादुल अव्वल 1335 हिजरी में सर्दे की हालत में आपका वसाल हुआ। आपका मज़ार मुबारक किले पर बनाए गए मकबरे में ज़ियारत गाह खास व आम है। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत और मदीनतुल औलिया की पहचान है। वसीम शहजाद, मुल्तान। बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैहि के 708वें सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात आज से शुरू होंगी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर का दरगाह हज़रत शाहरुख आलम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वसीम शहजाद ने मेजबान किया। वसीम, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बर सग़ीर पाक को हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 708वां जो सालाना उर्स है उसकी तकरीबात जो हैं वो आज से शुरू होंगी। और इस वक्त रात गए जो ऐसी सिटी हैं ख्वाजा उमर महमूद जो है वो यहाँ पर पहुँचे और इंतजामात का जायज़ा भी ले रहे हैं। हमारे हमराही मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, ज़ायरीन के लिए किस किस्म के इंतजाम जो हैं किए गए हैं? सेट कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिसमें ज़ायरीन की आसानी और सहूलत के लिए किए गए हैं। आपको देखेंगे बाहर के हमारे पोर्टेबल वॉशरूम्स लगे हुए हैं जी। हमारे जो अकोमोडेशन है उनकी जो हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में की गई है, वहाँ पे हमने ड्यूटी रोस्टर लगाया है। सफाई के निज़ाम के हवाले से फोकल पर्सनस नॉमिनेट किए हैं। हमने यहाँ पे अपने उनके असिस्टेंस के लिए डिफरेंट कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि रेलवे के लिए अगर किसी को टिकटिंग चाहिए, पुलिस काउंटर है, हेल्थ है, 1122 है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो हम वहाँ पे अच्छे इक्विप्ड होंगे। उसके अलावा हमने जो यहाँ पे ज़ायरीन की सहूलत के लिए और सर्दी को देखते हुए जितना भी हमारा हाथा है इसको पूरा कारपेट से कवर कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा रात को जो होगा वो सर्दी जो है वो जज्ब भी हो जाएगी। होपफुली आपको नज़र आएगा कि सफाई इस दफ़ा, हमारी सीवरेज के मामलात, हमारी क्लीननेस, हमारी ब्यूटिफिकेशन जो है वो इस दफ़ा लास्ट टाइम से डिफरेंट होगी, अल्लाह करेगा। हमारे हॉस्पिटल जो है स्टैंड बाय पे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारा एक स्पेशल वार्ड हमने रिजर्व कर लिया ज़ायरीन के लिए। हमारे DHQ में हमने पोस्टर्स, बैनर्स भी लगा दिए हैं कि जब ज़ायरीन आए तो उनको पता हो कि उनके लिए कौन सा वार्ड और कौन सी जो है वो सेक्शन रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। जो बीमारियाँ हैं जो वायरल होती हैं, इन्फेक्शन, उसके लिए हमने जो है वो हेल्थ का एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक मौजूद होंगे ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या अगर किसी को फर्स्ट एड चाहिए तो हम वहाँ से फुली इक्विप्ड होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे जिनके इस हवाले से ये कहना है कि हेल्थ का जो है खुसूसी तौर पर ज़ायरीन के लिए ख़ास तौर पर ख्याल जो है वो रखा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो इंतजामात हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बैक मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रोजगार मेला सजाया गया जहाँ सैकड़ों तलबा तालिबात ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया। रोजगार मेले का एहतमाम पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने किया था। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रोजगार मेले का एहतमाम पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से सजाए गए रोजगार मेले में 22 से ज्यादा कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। नौकरी के ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने मेले में शिरकत की। मारूफ सनतकार ख्वाजा यूनुस, वाइस चेयरमैन इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल, चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर महबूब अलही, पाकिस्तान कॉटन जिनर्स के चेयरमैन सुहेल हरल समेत दीगर अहम कारोबारी शख्सियात रोजगार मेले में शरीक हुई। उनका कहना था कि आज 800 से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मौके मौजूद हैं। इन्हें मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरियां दी जाएंगी। लोगों को पता लग गया कि VTI के लोग मौजूद हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं कि गहमी है, लोग सर्विस के लिए खड़े हैं और इंडस्ट्री ने यहाँ पे काउंटर लगाए हुए हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मुल्तान चैम्बर और VTI के ताउन से ऐसे तकरीबात होती रहेंगी। मुल्तान में ST इंटरनेशनल वाहिद अदारा है जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बना रहा है। वाइस चेयरमैन इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल का कहना था कि इंडस्ट्री स्टेट हुनरमंद अफराद के लिए हर वक्त कोशा है। कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल हरल ने कहा कि कॉटन जिनर्स ज़राअत के शोबे में हुनरमंदों को मौके फराहम करेगा, जबकि तुलबा और तालिबात ने रोजगार मेला सजाने पर इंतजामिया की तारीफ की। इंडस्ट्रियल एरिया में जो सर एप्लीकेशन की जॉब्स हैं उनमें अप्लाई करने आया हूँ। सर मैं VTI का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है। हम इधर हमारा ड्रेस मेकिंग का काम है। जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं उन्हें भी इधर आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ कैसे काम देख रहे हैं, CV वगैरह जो भी है उनका जो भी है वो इधर आएं और देखें। रोजगार मेला के आखिर में शुरा की कारकर्दगी को सराहते हुए इनमें शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में IT माहिरीन की तलाश। बैनुल अक़वामी तंजीम एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी ने वेब और मोबाइल एप्लीकेशन की कोडिंग के मुकाबले करा। जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मुसलमा हकीकत है। IT के मैदान ने दुनिया सुकेड़ दी है। पाकिस्तानी टैलेंट को IT के मैदान में सामने लाने के लिए बैनुल अक़वामी तंजीम ACM ने ख्वाजा फरीद कॉलेज में वेब और मोबाइल एप्लीकेशन की कोडिंग का मुकाबला कराया।
اس میں ایسا ہے کہ سر ایسوسیشن فار کمپیوٹنگ مشینری ACM دس از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رحیم یار خان سے جو بچے IT میں ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ IT میں ہمارے پاس کتنے سارے بچے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو اپرچونیٹیز دیں. ہماری پروجیکٹ ایگزیبیشن ہوتی ہیں, ہم ان کو وہاں پہ انوائٹ کریں گے. 15 دسمبر کو ہم ایک سیمینار رکھیں گے جس کے اندر ہم ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو پرائز ڈسٹریبیوشن سب نہیں رکھیں گے. اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری یونیورسٹی میں, اتنی اچھی وہ لوگ کوڈنگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو اس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. اور جیسے کہ آپ کو ہمارے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ ہم نے ٹاپ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ کولیب کیا ہے, تو وہ ان کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے اور گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی اسکلس کو پبلکلی شو کریں. ACMA کے تحت مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز نے مختلف پروجیکٹس بھی پیش کیے جنہیں بے حد سراہا کیا. اوکے جی, وی ہیو ڈسپلیڈ 4 پروجیکٹس جس کے اندر ایک فیس ماسک ڈیٹیکشن ہے, ایک ہم ڈرائیونگ الرٹ سسٹم بنایا ہے کہ اگر ڈرائیور سوتا ہے تو اس کو الرٹ کر دیا جائے. سو وی ہیو ڈیولپ 4 ڈفرنٹ پروجیکٹس اور یہ ہم نے یہاں پر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. جو ڈیویکون سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹلی گرو کیا جائے اور پاکستان کو ٹاپ پہ لے کے آیا جائے. ماہرین کے مطابق ملکی ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر بھی عبور حاصل کرنا ہوگا. IT سے وابستہ نوجوانوں کی مدد کی جائے تو وہ اپنے ٹیلنٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتے ہیں. کیمرامین انور سر کے ساتھ عاصم صدیق, روہی رحیم یار خان. اسلامیہ یونیورسٹی میں یکساں تعلیمی نصاب بارے 3 روزہ کانفرنس 7,000 والدین نے شرکت کی. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں یکساں تعلیمی نصاب بارے 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اساتذہ کا کہنا تھا کہ ایک نصاب سے یکساں قومی سوچ کو فروغ ملے گا. ہم نے یہ 3 روزہ ورکشاپ کا اہتمام 7 سے 9 دسمبر 2021 کیا اور یہ ہم نے وردی وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب کی ڈائریکشن اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ویژن کی روشنی میں کیا. 3 روزہ کانفرنس میں اساتذہ اور طلبہ و طالبات کے والدین بھی شریک ہوئے. طالب علم کی والدہ کا کہنا تھا کہ یکساں نصاب سے تمام بچوں کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع ملیں گے. آج اس ورکشاپ کے اختتام پر میں بہت خوش ہوں کہ اس نے اپنے تمام اغراض و مقاصد پورے کر لیے. اس کے جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے بہترین انپٹ دیا اور ایک جو تجاویز ہیں گراس روٹ لیول پر, مائکرو لیول پر, بہت چھوٹے چھوٹے جو آسپیکٹ تھے اس کنٹینٹ کے, ان تمام کو ہائی لائٹ کیا گیا. ڈین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر اختر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ارشاد نے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا اور مستقبل میں بھی ایسی کانفرنس کروانے کا عندیہ دیا. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. ملتان جنرل بس اسٹینڈ پہ قائم پناہ گاہ میں بنیادی سہولیات کی فراوانی رہائشی افراد نے کی خوشی دی تھی. کہتے ہیں وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں کہ پناہ گاہ بنا کر ان کی مشکلات کا ازالہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بے گھر افراد کی اور رہائش دینے کے لیے پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. جنرل بس اسٹینڈ پر پناہ گاہیں قائم کی جا چکی ہیں. یہاں پر رہائش پذیر افراد کو کون سی بنیادی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں, آئیے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. بے گھر افراد کو چھت مہیا کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پناہ گاہیں قائم کی گئیں. ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت کی جانب سے جنرل بس اسٹینڈ پر قائم پناہ گاہوں میں بے گھر افراد کو رہائش اور بنیادی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں. پناہ گاہوں میں رہائش پذیر لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے پناہ گاہ میں ہر چیز کی سہولت دی ہوئی ہے. میں پردیسی آدمی ہوں, میں تو 2 دن سے بہت پریشان تھا کہ اڈے پر ہوٹل پر رات بتا رہا تھا. کسی بھائی نے بتایا کہ عمران خان کی بنائے گی پناہ گاہ ہے, آپ کو وہاں پہ بستر ہر چیز, یہاں ایسا بستر ہمیں گھر پر نہیں ملا جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہاں پہ دیا ہوا ہے. جنرل بس اسٹینڈ پر موجود ملازمین کا کہنا تھا کہ جنرل بس اسٹینڈ پر پناہ گاہوں میں جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا فری مہیا کرتے ہیں. پناہ گاہ میں سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کے اوریجنل کارڈ جو ضلع ملتان سے نہیں ہوں گے, جو ادھر سے پردیسی ہوں گے, ہم ان کو رہائش دیں گے اور ان کو کھانا دیا جائے گا. تو انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی بعد جماعت ہوتی ہے اور صبح کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ کرواتے ہوتے ہیں. پناہ گاہ میں ملتان کے علاوہ دوسرے شہروں کے ID کارڈ چیک کر کے اور ویکسینیشن کارڈ چیک کر کے پناہ گاہوں میں رہائش کی اجازت دی جاتی ہے. پناہ گاہوں میں دی جانے والی بنیادی سہولیات سے یہاں پر رہائش پذیر شہری وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام سے کافی خوش دکھائی دے رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بے گھر افراد کو پناہ گاہوں میں رہنے کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کیا ہے. کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ ماجد کلاسرا, ملتان. غریب اب ٹھنڈ میں نہیں ٹھٹرے گا. ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے احساس بازار کے بعد احساس دیوار کا بھی افتتاح کر دیا. مخیر حضرات کے تعاون سے غریب شہریوں میں مفت گرم کپڑے تقسیم کیے جائیں گے.
मुल्तान इंतजामिया का अहसन इकदाम। डिप्टी कमिश्नर ने सनतजार रोड पर एहसास दीवार का इफ्ताह कर दिया। गरीब बच्चों और मजदूरों में कपड़े तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था एहसास दीवार पर गरीब अफराद को गर्म कपड़े मुफ्त फराहम किए जाएंगे। आपको पता है कि ये मुस्तकिल चीजें नहीं लग सकती, इसमें भी एनजीओ ने हमसे ताउन किया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा उसकी कंट्रीब्यूशन है। हमारी कोशिश तो ये है कि ये जितना मैक्सिमम अरसा चल सकता चले, लोगों की सपोर्ट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे जैसे लोग दर्द दिल रखने वाले इसका हिस्सा बनते जाएंगे, इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद पहली तरजीह है। रोजाना 500 से ज्यादा अफराद को कपड़े फराहम किए जाएंगे। कपड़े लेने वाले अफराद का कहना था कि मजदूर रोटी पूरी कर ले, यही बड़ी बात है। गर्म कपड़े मुफ्त देना बेहतरीन अमल है। आम आदमी जो मजदूर तबका है वो जो है ना बाजार से महंगे कपड़े वगैरह, सर्दियों के जर्सियां वगैरह, कोट वगैरह नहीं खरीद सकते। ये काम जो इमरान खान ने, हुकूमत ने ये जो प्रोग्राम बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि मुखय्यर हजरात अपने मलबूसात गरीब अफराद को देने के लिए दीवारे एहसास पर रख सकते हैं। सिविल सोसाइटी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा डाले। मुल्तान में सर्दी कम पड़ती है, मगर जब पड़ती है तो खून जमा देती है। इंसानियत की जानिब से एहसास दीवार कायम की गई, जहां पर अब ये कपड़े गरीब शहरी मुफ्त हासिल कर सकेंगे और मुल्तान की सर्दी से महफूज रह सकेंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। जनूबी पंजाब के बड़े शॉपिंग मॉल अरीना मॉल के बहावलपुर में कंस्ट्रक्शन का आगाज हो गया। सीईओ सैयद अहमद आलम कहते हैं अरीना मॉल बिजनेसमैनों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। बहावलपुर में जनूबी पंजाब के बड़े शॉपिंग मॉल अरीना मॉल की इफ्तिताही तकरीब हुई। सीईओ सैयद अहमद आलम का कहना था कि अरीना मॉल बिजनेस कम्युनिटी के लिए तिजारत का बेहतरीन सेंटर साबित होगा। 2 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए वक्फ होंगे। अरीना मॉल जो कि 11 फ्लोर पर टोटल मुश्तमिल है, जिसमें जनूबी पंजाब में पहली दफ़ा 2 फ्लोर पार्किंग के लिए रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। और ये जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा कोई 2 से 2.5 साल में। सीईओ अरीना मॉल का कहना था कि मुल्क की बेहतरीन थहीम कंस्ट्रक्शन कंपनी जदीद मशीनरी से 2.5 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगी। हम इसको जिद्दत पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बैचिंग प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। बहावलपुर में मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम होगा। उससे कंक्रीटिंग होगी, मैनुअल वर्क जो है उसको शॉर्टकट कर रहे हैं, तो उससे जो है ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह स्पीडी होगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब उनका एक काफ़ी अरसे से एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि भावलपुर का एक ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और लैंडमार्क होगा इंशाल्लाह। सीईओ अरीना मॉल सैयद अहमद आलम का मजीद कहना था कि अरीना मॉल के जरिए बहावलपुर के अवाम को शॉपिंग सहूलियात मिलेंगी और अरीना मॉल जनूबी पंजाब में बहावलपुर की पहचान बनेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। दुनिया भर में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर खेलों को फरोग देने के लिए 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला सज गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से दुनियापुर में 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला सज गया। इब्न सीना स्कूल और कॉलेज में सजे स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, दौड़, रस्साकशी, डिस्क थ्रो और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह चेयरमैन बल्दिया दुनियापुर फहद नूर खान जोइया ने किया। साबिक सिटी नाजिम रफीक शाह बुखारी भी उनके हमराह थे। इब्न सीना कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद आसिम बुखारी का इस मौके पर कहना था कि तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं। हमने गवर्नमेंट की हिदायत की रोशनी में अपने कॉलेज इब्न सीना कॉलेज दुनियापुर में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है, ताकि सेहतमंदाना सरगर्मियाँ पैदा हो सकें। आज इफ्तिताही तकरीब है और 3 रोज़ा गेम्स के इनाकात के बाद आखिरी रोज़ इख्तितामी तकरीब में जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा जाएगा। खेलों में शरीक तुलबा का कहना था कि खेलों के ऐसे मुकाबले कम से कम साल में एक बार जरूर होने चाहिए। हुकूमत का ये बहुत अच्छा इकदाम है। जहां पर खेल के मैदान आबाद होते हैं, वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। इब्न सीना कॉलेज और स्कूल्स ने जो है वो तालीमी मैदान में जो है कि हमारे दुनियापुर शहर में तारीखी जो है वो किरदार अदा किया है। ऐसे ही जो है वो इन्होंने ये स्पोर्ट्स गाला का जो इनकाद करके भी जो है ये दुनियापुर में एक तारीख रकम की है। नौजवान खिलाड़ियों ने मुतालबा किया कि खेलों के इन मुकाबलों से टैलेंट तलाश करके कौमी सतह पर भेजा जाए, ताकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन समीउल्लाह अलवी के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। और इसी के साथ ने स्टूडियो से फिल्म इतना ही।